ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण बोधान सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभांस्ते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं कुङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक नंबर 1.8.30। जन्म कर्म च विश्वात्मनः अजस्याकृतिरात्मनः तिर्यन्निर्शिशु यादसु यादहसु तत् अत्यंत विडम्बनम्। जन्म कर्म एक्टिविटी च and विश्व आत्मन O soul of the universe, Ajasya of the unborn, Akartu of the interactive, Atmanaha of the vital energy, Tiryat animal, Nra human being, Rishishu in the sages, Yadasu in the water, Tat that, Atyanta veritable, Vidambanam bewildering. Translation and purport by His Divine Excellency Dr. Vedanta Swami Srila Prabhupada. Of course, it is bewildering, O soul of the universe, that you work though you are inactive, and that you take birth though you are the vital force and the unborn. You yourself descend among animals,
men, sages, and aquatics. Verily, this is bewildering. But the transcendental pastimes of the Lord are not only bewildering, but also apparently contradictory. In other words, they are all inconceivable to the limited thinking power of human being. The Lord is all pervading, super soul of all existence, and yet he appears in the form of a bird amongst the animals, in the form of a human being as Rama, Krishna, etc., in the form of Rishi like Narayan, and in the form of an aquatic like fish. Yet it is said that he is unborn and he has nothing to do. In the Shruti mantra, it is said that the Supreme Brahman has nothing to do. No one is equal to or greater than him. He has manifold energies, and everything is performed by him perfectly, by automatic knowledge, strength, and activity. All the statements prove, without any question, that the Lord's activities, forms, and deeds are all inconceivable to our limited thinking power. And because he is inconceivably powerful, everything is possible in him. Therefore, no one can calculate him exactly. Every action of the Lord is bewildering to the common man. He cannot be understood by the Vedic knowledge, but he can be easily understood by the pure devotees, because they are intimately related with him. The devotees therefore know that although he appears amongst the animals, he is not an animal, nor a man, nor a rishi, nor a fish. He is eternally the Supreme Lord in all circumstances. यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं, ऑफ कोर्स इट इज बिविल्डरिंग. बिविल्डरिंग करना मतलब भ्रमित करता है. क्या? ओ सोल ऑफ द यूनिवर्स, ये इस ब्रह्मांड के आत्मा, दैट यू वर्क though you are inactive, and that you take birth though you are the vital force and the unborn. You yourself descend amongst animals, men, sages, and aquatics. Verily, this is bewildering. क्या बोल रहे हैं भगवान के बारे में? कुंती महारानी कह रही हैं, यद्यपि आप कार्य करते हो प्रभु, आप सोल हैं. सबसे पहले तो आप पूरे ब्रह्मांड की आत्मा. तो कृष्णा इज द सोल ऑफ दिस होल एग्जिस्टेंस. सोल मतलब प्राण, आत्मा, जिसके कारण ये सब कुछ चल रहा है. सर्व कारण कारण. आप कार्य करते हो, यद्यपि आप इनएक्टिव हो. इनएक्टिव हो का मतलब क्या है? कि आप कार्य करते हो, परंतु आप कार्य नहीं करते हो. इसका मतलब क्या है? सारे कार्य भगवान की इच्छा से हो रहे हैं, परंतु भगवान स्वयं कोई कार्य नहीं कर रहे. भगवान केवल आनंद कर रहे हैं. केवल आनंद, केवल आनंद. एंड दैट यू टेक बर्थ. और भगवान प्रकट होते हैं. ये कैसे बिविल्डरिंग है, कैसा कंफ्यूज कर रहा है, भ्रमित कर रहा है सभी को, कि भगवान प्रकट होते हैं जबकि भगवान अजन्मा है, और सभी जीवों के अंदर जो प्राण शक्ति है वो भगवान है. यू योरसेल्फ डिसेंड अमंगस्ट एनिमल्स. आप स्वयं प्रकट होते हो. कहा? एनिमल्स के अमंगस्ट. अमंगस्ट एनिमल्स. पशुओं के बीच में भी भगवान प्रकट होते हैं. मैन, मनुष्यों के बीच में भगवान प्रकट होते हैं. सेजेस, सेजेस मतलब ऋषियों के बीच में. एंड एक्वेटिक्स. और एक्वेटिक्स मतलब जो पशु हैं, जो जलचर हैं, उनके बीच में भी प्रकट होते हैं. वेरीली दिस इज बिविल्डरिंग. और यही भ्रमित करता है सभी को. ये भ्रमित कर रहा है सभी को. तो कैसे भ्रमित कर रहा है? कि भगवान इन सब के परे हैं.
परंतु भगवान सभी को भ्रमित कर रहे हैं। जो कार्य भगवान कर रहे हैं वो भगवान के कार्य है ही नहीं। जो रूप भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं, मनुष्य का, पशुओं का, जलचरों का, वो है नहीं भगवान। और भगवान, हाँ, क्या नहीं है, भगवान जो है जन्म नहीं लेते। भगवान क्या करते हैं? जन्म नहीं लेते। भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान जन्म नहीं लेते, परंतु फिर भी जन्म लेते हैं। ये है कंफ्यूजिंग। द ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड आर नॉट ओनली बिविल्डरिंग बट ऑल्सो अपेरेंटली कॉन्ट्रेडिक्टरी। ये तो भ्रमित तो करता ही है, परंतु कॉन्ट्रेडिक्ट भी करता है, एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट भी होता है। इन अदर वर्ड्स, दे आर ऑल इनकंसीवेबल टू द लिमिटेड थिंकिंग पावर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये इनकंसीवेबल है, जो ह्यूमन बीइंग की लिमिटेड थिंकिंग पावर है उससे इनकंसीवेबल है। द लॉर्ड इज ऑल परवेडिंग सुपर सोल ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में सर्वव्यापी है भगवान। Yet he appears in the form of poor amongst animals. हाँ, शूकर के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। In the form of human as Ram and Krishna. In the form of rishi like Narayan. And in the form of aquatic like a fish. Yet it is said that he is unborn and he has nothing to do. फिर भी ये कहा जाता है कि he is unborn and he has nothing to do. In the Shruti mantra it is said that the supreme Brahman has nothing to do. कोई कार्य है ही नहीं भगवान के लिए। No one is equal to or greater than him. कोई भी भगवान के इक्वल नहीं और या उनसे बढ़कर नहीं है। He has manifold energies. And everything is performed by him perfectly by automatic knowledge, strength and activity. सब कुछ होता है भगवान के द्वारा, हाँ, ऑटोमेटिकली भगवान की शक्तियां करती है। And because all these statements prove without a question that Lord's activities, form and deeds are all inconceivable to our limited thinking power. हमारे limited thinking power से beyond है। And because he is inconceivably powerful, everything is possible in him. सब कुछ संभव है। Therefore, no one can calculate him exactly. कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता exactly. Every action of the Lord is bewildering to the common man. He cannot be understood by the Vedic knowledge, but he can be easily understood by the pure devotees because they are intimately related with him. The devotees therefore know that although he appears among animals, he is not an animal, nor man, nor a rishi, nor a fish. He is eternally the supreme Lord in all circumstances. यद्यपि भगवान प्रकट होते हैं संसार में, परंतु भगवान जो भी रूप धारण करते हैं, जैसे मनुष्य का रूप धारण किया तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मनुष्य हो गए। पशु का रूप धारण किया तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान पशु हो गए। जलचर का रूप धारण किया तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जलचर हो गए। भगवान, हाँ, अर्चा विग्रह के रूप में आ जाते हैं। तो पत्थर से अर्चा विग्रह बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान पत्थर हो गए, नहीं। भगवान अपनी इनकंसीवेबल एनर्जी से मैटर को स्पिरिट कर देते हैं, स्पिरिट को मैटर कर देते हैं। वास्तव में देयर इज नथिंग बट कृष्णा इन द होल एग्जिस्टेंस। कृष्ण मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को हमारे लिए, इस संसार के बद्ध जीवों के लिए भगवान मैनिफेस्ट करते हैं। भगवान को कोई कार्य नहीं है संसार में, फिर भी भगवान इस संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं।
पुनः पुनः प्रकट होते हैं। विभिन्न रूपों में, विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। और यही भ्रमित करता है। क्यों? क्योंकि जलचर सोचता है कि ये मेरे जैसे हैं तो ये पशु हैं। मनुष्य सोचता है ये मेरे जैसे हैं तो मूढ़ोयम नाभिजानाति, तो ये भी मनुष्य हैं। परंतु भगवान इन सब सेटअप से अलग है। भगवान दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, चिन्मय हैं। तो भगवान जब इस धरा पर प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। प्रकृति के तीन गुण भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते। प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं भगवान। ये भगवान की महिमा है। और समस्त जीवों को भगवान ऐसे ही भ्रमित करते हैं, क्योंकि भगवान के वास्तविक स्वरूप कौन देख पाता है? तपस्वी, ज्ञानी, योगी, भोगी कोई नहीं जान सकता। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त जान सकता है। केवल भक्त जान सकता है। केवल भक्त जान सकता है भगवान। केवल भक्त। और इसीलिए हम सभी को बोला जाता है कि हमें भक्ति करनी है। हमें भक्ति करनी है। अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमको अपनी भक्ति करनी है। भगवान की सेवा में सबको जीवन समर्पित करना है। और जिसका जीवन ऐसे 24/7 भगवान की सेवा में है वो सन्यासी है। सन्यासी चाहिए। और हमें ऐसे सन्यासी बनना है, घर छोड़ के नहीं सन्यासी बनना है। हमें 24/7 एंगेज रहना है भगवान की सेवा। 24/7 एंगेज रहना है भगवान की सेवा। और जब हम ऐसे एंगेज रहेंगे, ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम् हम। तो जो जितनी प्रकार से भगवान की सेवा में संलग्न रहेगा, भगवान उसको उतने प्रकट होंगे, उतने समझ में आएंगे, उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी, रियलाइजेशन उसका उतना होगा भगवान के प्रति। ये है अद्भुत भगवान की महिमा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि 24/7 वी आर एब्सॉर्ब्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। एब्सॉर्ब्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। 24/7 भगवान के साथ रहें, भगवान के पास रहें, भगवान की सेवा में रहें। अगर हम भगवान की सेवा में हैं तो हम भगवान के पास हैं। भगवान की कथा सुन रहे हैं तो हम भगवान के पास है। भगवान का कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान के पास है। भगवान के धाम में है तो भगवान के पास है। 24/7 हमें भगवान का सानिध्य चाहिए। हमें मैटर का सानिध्य नहीं चाहिए। संसार के जीवों को मैटर पसंद है। मैटर क्या पसंद है? मैटर। हमें संसार से परे रहना है, मैटर से परे रहना है। अपने स्वरूप में स्थित होना है। जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्ण दास। ये जीव का स्वरूप है। तो जो सेवा में स्थित है वो स्वरूप में स्थित है। सेवा में स्थित है वो स्वरूप में स्थित है। और जो सेवा में स्थित नहीं है वो स्वरूप में स्थित नहीं है। सो दिस इज हाउ। एंड देन भगवान जो है ऐसे सेवकों को आकर्षित कर। जो सेवा करना चाहता है भगवान ऐसे सेवक को आकर्षित करना चाहते हैं या करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच डियर वैष्णवास फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेस सेशन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोटि वैष्णव